Hello students, now we discuss certain proofs related to the Euclid division lemma. Now the first question, show that any positive odd integer is of the form of 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer. आपको क्या शो करना है कि आपने कोई एक odd positive integer consider किया है that will always in the form of 4q plus 1 or 4q plus 3. So how can we prove that? Let's suppose A is any odd positive integer. What we suppose that A is any odd positive integer. Now we apply the Euclid division lemma over it like that. Now we apply the Euclid division lemma on the A, and suppose B is equals to 4, then A is equals to 4q plus r, where r is lies from 0 to 4. तो r की वैल्यू क्या होगी? 0, 1, 2 and 3. क्योंकि अकॉर्डिंग टू द यूक्लिड डिविजन लेमा a is equals to what? bq plus r, where r is lies from 0 to b. ठीक है, तो we apply the Euclid division lemma on the odd integer a such that b is equals to 4. So a is equals to 4q plus r. Then there are four possible values of a. When r is 0, then a is equals to 4q. When r is equals to 1, a is equals to 4q plus 1. When r is equals to 2, a is equals to 4q plus 2. When r is equals to 3, a is equals to 4q plus 3. So these are the four possible values of a. Now out of these four values, when we examine these two values, r equals to 0 पर a की जो वैल्यू आ रही है और r equals to 2 पर जो वैल्यू आ रही है, now this first value of a 4q, if we consider q is any integer, then 4q is always a even number, it is not considered as a odd integer. क्योंकि कोई भी वैल्यू आप लें, 0 लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, 4 लें, उसका जब भी 4 से मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो हमेशा क्या मिलेगी? एक इवन नंबर ही मिलेगी. Similarly, if I taking the value of a is equals to r cube plus 2, तो ये भी आपका क्या होगा? एक इवन नंबर रहेगा. तो ये भी a is equals to 4q, that is your even number, and 4q plus 1, that is also a even number. So now next two terms ये क्या हो जाएंगी? 4q plus 1 and 4q plus 3. So these two numbers are the odd numbers. So from that we can prove that a is an odd number which is always is in the form of 4q plus 1 and 4q plus 3. ठीक है, हमने क्या सपोज किया? हमने एक नंबर ले लिया a, उस a को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया? a is equals to 4q plus r, और r की वैल्यू जो है वो हमने कहां से कहां वेरी करी? 0 से 4 के बीच में. r is equals to 0, more than equals to 0 and less than 4. So value of r is from 0, 1, 2 and 3. ठीक है, तो a की चार वैल्यू आई, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3. इनमें से जो फर्स्ट वैल्यू है वो क्या इंडिकेट कर रही है कि जो a है दैट इज अ मल्टीपल ऑफ 4, एंड जो थर्ड वैल्यू है a is equals to 4q plus 2. ये दोनों नंबर्स क्या हैं? आपके इवन नंबर है, तो ये कभी भी ऑड नहीं हो सकते. तो रिमेनिंग जो दो फॉर्म है a के, दैट इज 4q plus 1 and 4q plus 3, which indicates that a is a odd integer. What? A is a odd integer. Is that clear?
show that every positive even integer of the form 2q and that every positive odd integer is in the form of 2q plus 1 where q is some integer. क्या प्रूव करना है कि जो पॉजिटिव आप कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हैं उसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर जो होगा दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 2q एंड द ऑड इंटीजर जो होगा दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 2q प्लस 1. ठीक है, वेयर q इज सम इंटीजर, ये आपको प्रूफ करना है. सो व्हाट वी आर टेकिंग हियर, लेट सपोज a is any positive integer. Now apply the Euclid division lemma on a and b is equals to 2. So a is equals to now what? A is equals to 2q. A is equals to 2q plus r, where r is from 0 to 2. r की वैल्यू क्या होगी? हमेशा 0 से b के बीच में वैरी करती है, तो r की वैल्यू होगी 0 to 2. तो a की पॉसिबल वैल्यूज क्या हुई? When r is equals to 0, 1 or 2. Sorry, r is equals to 0 or 1. So when r is equals to 0, a is equals to 2q, and when r is equals to 1, then a is equals to 2q plus 1. So if I am considering that q is any integer, then 2q is a multiple of 2q is multiple of 2, यानी वो क्या हो जाएगा? आपका इवन नंबर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा. q की आप कोई भी वैल्यू लें, 0, 1, 2, 3, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है आपको q को भी, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो क्या आएगा? हमेशा इवन नंबर आएगा. अब ये आपका क्या हो गया? इवन. सो द फॉर्म ऑफ a in the form of 2q is always represent a even positive integer, whereas 2q plus 1, अब देखिए ये 2q आपका इवन नंबर है, उसमें 1 जैसे ऐड करेंगे दैट इज ऑड नंबर. तो एनी फॉर्म ऑफ a in the form of 2q plus 1 represent the odd number. क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऑड नंबर रिप्रेजेंट करेगा. सो एनी पॉजिटिव even number is in the form of 2q and any positive odd number is always in the form of 2q plus 1. Is it clear? Now next question. Using the Euclid division lemma, show that the square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. आपको क्या प्रूफ करना है? स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1 वेयर m इज सम इंटीजर. तो हम क्या सपोज करेंगे? अगेन लेट सपोज a is any positive integer. Now apply Euclid division lemma on a and b, where b is equals to 3. b की वैल्यू हमने क्या लेनी है? 3. तो now a is what? a is equals to 3q plus r. देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? bq plus r, where r is rise from 0 to b. तो r की वैल्यू यहाँ क्या लाई करेगी? 0 to 3. मोर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन 3. तो r की 3 वैल्यूज हो जाएंगी 0, 1 एंड 2. ठीक है. सो नाउ लेट when r is equals to 0, a is equals to 3q. When r is equals to 1, a is equals to 3q plus 1. When r is equals to 2, then a is equals to 3q plus 2. अब हमें यहाँ प्रूफ क्या करना है कि स्क्वायर ऑफ द a always in the form of
3m और 3m प्लस 1। तो अब आपके पास a की 3 पॉसिबल वैल्यूज हैं, तो इन तीनों पॉसिबल वैल्यूज का आप स्क्वायर करेंगे और आपको क्या रिप्रेजेंट करना है कि दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 3m और 3m प्लस 1। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, लेट्स सपोज कि a हमने ले लिया 3q, लेट्स a इज टेकन एज अ 3q, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर, ये हमने 3 कॉमन ले लिया, ये हो गया 3q स्क्वायर। वेयर लेट्स सपोज कि 3q स्क्वायर को हमने क्या ले लिया k, तो या k1 ले लिया, तो ये हो गया 3k1। तो यहाँ a स्क्वायर किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट हो गया, a स्क्वायर इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ 3m। नेक्स्ट हमने लिया व्हेन वी आर टेकन so here a square is in the form of 3m। now next a लिया हमने 3q plus 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हो गया 3q plus 1 का स्क्वायर, ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ठीक है, तो अब हमने क्या लिया, इन दोनों टर्म में से 3q कॉमन लिया, तो ये हो गया 3 कॉमन ले लेते हैं, चलो, तो ये हो गया 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब ये 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने एक नया कांस्टेंट ले लिया k2, 3q स्क्वायर प्लस 2q इज इक्वल टू k2, तो ये हो गया 3k2 प्लस 1। तो ये किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म, किस फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आ गया। तो यहाँ a स्क्वायर किस फॉर्म में आया, a स्क्वायर इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, किसके फॉर्म में आ गया, 3m प्लस 1 के फॉर्म में आपको ऑब्टेन होगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वैल्यू है a की वैल्यू है आपकी now a is 3q plus 2, तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q plus 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। तो क्या से रिप्रेजेंट करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, 3 कॉमन ले लेंगे हम, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 प्लस 1, ये आपका नया कांस्टेंट हो गया k3, तो 3k3 प्लस 1। तो यहाँ a स्क्वायर किस फॉर्मेट में आ रहा है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। So the square of any positive integer is always in the form of 3m or 3m plus 1। ठीक है, फर्स्ट वाले में वो क्या आया 3k1, सेकंड वाले में a स्क्वायर क्या आया 3k2 प्लस 1, और नेक्स्ट वाले में क्या आया 3k3 प्लस 1। और where k1 k2 and k3 are some positive integer, so by using the Euclid lemma we prove that square of any positive integer either is in the form of 3m or 3m plus 1. Is that clear? Now next question, using the Euclid division lemma show that the cube of any positive integer is in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8, cube of any positive integer। तो again let a is any positive integer, apply Euclid division lemma on a and b is equals to 3,
So the A is equals to now 3q plus r, where r is lies from 0 to 3. r की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1 और, तो a की 3 पॉसिबल वैल्यू होगी. A is equals to 3q when r is equals to 0. A is equals to 3q plus 1 when r is equals to 1, और A is equals to 3q plus 2 when r is equals to 2. तो A की 3 पॉसिबल वैल्यूज हो गई, या 3 पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ द A एक्सिस्ट. अब हमें क्या करना है, क्या प्रूव करना है कि क्यूब ऑफ दिस A इज इन द फॉर्म ऑफ 9m plus 1 और 9m plus 8. तो लेट सपोज कि हम पहले सपोज करें कि लेट A इज इक्वल्स टू इन द फॉर्म ऑफ 3 क्यूब. सो A क्यूब क्या हो जाएगा? 3 क्यूब का होल क्यूब. तो A क्यूब इज इक्वल्स टू 27 क्यूब. तो A क्यूब क्या लिखा हमने? 9 into 3 क्यूब. ठीक है. अब देखिए क्यू आपका कोई भी इंटीजर है, तो ये क्या हो गया? A क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m. A क्यूब क्या आया? इज इन द फॉर्म ऑफ 9m. नेक्स्ट हमने लिया A इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1. तो A क्यूब कैलकुलेट करें तो 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब. तो A प्लस B का होल क्यूब क्या होता है? A क्यूब B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B. तो A क्यूब क्या हो गया? 27 क्यूब प्लस 1 इंटू ये 3 3 जा 9, 3 क्यूब प्लस 1. तो A क्यूब हो गया 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब. तो A क्यूब की वैल्यू आई 27 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1. ठीक है. इन तीनों टर्म में से हमने क्या कॉमन लिया? 9 कॉमन ले लिया. 9 तो हो गया 3 की क्यूब प्लस 3 क्यूब स्क्वायर प्लस क्यूब प्लस 1. अब ये पूरी टर्म हमने क्या कंसिडर कर ली? m. तो A क्यूब क्या आ गया? 9m प्लस 1, क्योंकि ये पूरी टर्म आपकी क्या आएगी? इंटीजर आएगी. सो A क्यूब इज इन द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इफ वी आर टेकिंग लेट A इज इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2. तो A क्यूब क्या हो जाएगा? 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब. तो A क्यूब हो गया. A प्लस B का होल क्यूब क्या होगा? A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB A प्लस B. ये हो गया 27 क्यूब प्लस 8 प्लस ये हो गया 18 क्यूब 3 क्यूब प्लस 2. ये हो गया 27 क्यूब प्लस 18 3 जा 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 36 क्यूब प्लस 8. इसमें से A क्यूब क्या 9 कॉमन लिया. 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 4 क्यूब प्लस 8. ये पूरी टर्म आपकी m कंसिडर कर ली. तो A क्यूब क्या हो गया? 9m प्लस 8. सो द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of 9m plus 1 or 9m plus 8. So these variety of question basically asked in a Euclid division lemma. Is that clear? Now we discuss some special variety of questions, miscellaneous variety of question of Euclid lemma. Now first question is, find the greatest number which divides 285 and 1249. Find the greatest number which divides 285 and 1249, leaving remainder 9 and 7 respectively.
ठीक है, तो आपका एक नंबर है ए दैट इज 285 और बी है 1249। यदि आप इन दोनों नंबर को किसी एक सुटेबल नंबर से डिवाइड करते हैं, देन द 285 लीव्स अ रिमाइंडर 9 एंड 1249 लीव्स अ सुटेबल रिमाइंडर 7। बट वो जो सुटेबल नंबर होगा वो नंबर सेम रहेगा। तो इन दोनों का वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है, जिससे ये नंबर जब डिवाइड होगा, मतलब इस नंबर को उस ग्रेटेस्ट नंबर से जब डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर क्या रहना चाहिए, 9 और 7। तो यदि इस नंबर से यदि हम उनके रेस्पेक्टिव रिमाइंडर्स कैलकुलेट क्या कर लें, सब्ट्रैक्ट कर लें, तो जो नया नंबर मिलेगा वो उस ग्रेटेस्ट नंबर से क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। क्या होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। सो इफ वी सब्ट्रैक्ट 9 फ्रॉम 285, so new number C is equals to 285 minus 9, so that comes 276, and the 1249 minus 7, that is 1242. Now these two numbers C and D, when divided by this greatest number, then it is exactly divisible, no remainder is coming out। means हमें क्या कैलकुलेट करना है, इन दो नंबर्स का HCF, क्योंकि इन दो नंबर्स का जो HCF होगा वही क्या होगा, आपका ग्रेटेस्ट नंबर, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सो व्हाट वी हैव कैलकुलेट, HCF ऑफ 276 and 1242, that we have calculate by using यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा में किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए HCF of 276 and 1242, ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1242, B is equals to 276। now we represent A in the form of BQ plus R, where Q and R are suitable whole numbers। ठीक है, तो 1242 divided by 276, तो 5 से किया तो 30, 35, 38, तो 5 भी बड़ा आ रहा है, 4 लेंगे तो 24, 2, 28 और 30, 1104। ठीक है, तो 1242 is equals to 276 into 4 प्लस रिमाइंडर कितना बचा, 8, 3, 1, 1। now the remainder is not equals to 0। again we apply the Euclid division lemma over the 276 and 138। 276 is equals to 138 into, now 276 is equals to 138 into 2 plus 0, so the remainder comes 0। then out of A and B, B is the HCF of A, so out of 276 and 138, 138 is the HCF of 276 and 1242, HCF क्या हो जाएगा, 138। so the actual question is find the greatest number। so the greatest number is 138, which divides the 285 and 1249, leave the remainder 9 and 7 respectively। is that clear? now next question, if the HCF of 408 and 1032 is expressed in the form of 1032 into m minus 408 into 5, then find m। यदि
क्वेश्चन क्या है कि 408 एंड 1032 का HCF यदि आप इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, m की वैल्यू कैलकुलेट करना। तो फर्स्ट वी डिटरमाइन द HCF ऑफ 408 and 1032 by using Euclid division lemma. So A is equals to 1032 and B is equals to 408. So 1032, that A is equals to BQ plus R, that is our Euclid division lemma. ठीक है, तो 1032 is equals to 408 into 2, that is 816. रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1032 में से 816 गया 6 116, सॉरी 260, ठीक है, कितना रह जाएगा 260। Now R is not equals to 0. Again apply the Euclid division lemma over the 408 and 216. So 408 is 216 into, इसका डबल करेंगे तो 432 है, 430 is lesser than more than 408, तो into 1, तो रिमाइंडर रह गया आपका now 108 plus 16 8 2 192. Again we apply the Euclid division lemma over the 216 and 192. So 216 is equals to 192 into 1 plus 24. ठीक है, अगेन वी अप्लाई द यूक्लिड डिवीजन लेमा क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, 192 एंड 24, 192 इज इक्वल टू 24 into 8 32, so 24 into 8 plus 0, so the remainder comes 0. So out of 192 and 24 is the HCF. So HCF क्या हो जाएगा? So HCF of 1032 and 408 is 24. So HCF of 408 and 1032 is equals to 24. So question में क्या है कि HCF is expressed in the form of this. So 24 is equals to 1032 into m minus 408 into 5. So 24 plus 408 into 5 is equals to 1032 into m. 24 plus 44 so ये हो गया m is equals to, देखिए ये हो गया 2064 डिवाइड बाय 1032 is equals to m. तो m की वैल्यू क्या आ गई 2. The value of m comes 2. Value of m comes 2. Is that clear? So these variety of question basically asked in the Euclid division lemma. So that is all about the first exercise of the real number Euclid division lemma. Thank you.